Yes. So this is the concept of displacement current, and the displacement current is given by the formula ID is equal to epsilon naught into d phi by dt, where d phi by dt stands for rate of change of electric flux. And if suppose there is a medium between the two plates, then we can say this displacement current will actually be equal to epsilon naught into k, where k is the dielectric constant of that medium, multiplied by this d phi by dt as it is. And even this displacement current can also be written to be equal to id, which is equal to epsilon naught k as it is into area, because we know that phi is actually equal to intensity into area, right? So we can take area A out and get this as A into dE by dt, where the dE by dt stands for the rate of change of electric intensity. So this displacement current is directly dependent on the rate of change of electric intensity in the space. किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट माना जाता है. Okay, so this is the concept of displacement current. No doubt. So basically in the space also, अगर suppose space में भी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर चेंज होता है, मतलब अगर कम है और वो बढ़ता है, या जाता है और कम होता है, तो दोनों को हम चेंज ही बोलेंगे. So whenever there is a change in the electric field or electric flux in the space, there is a current that is flowing in the space. So that current is called as a displacement current. There is a assumed current, मतलब एक इनविजिबल करंट वहां पे फ्लो होता हुआ माना जाता है जब भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है. तो इसका मतलब इन शॉर्ट क्या है ना, एक्चुअली करंट फ्लो हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये हमको कहने की बात है. तो बस बेसिकली द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये इसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने जैसी है. I will repeat again that the change in the electric field give rise to the magnetic field in the space. तो suppose ये एक space है, ये एक suppose एक region है, और इस region के अंदर पहले electric field है लेकिन वो थोड़ा weak है, ये देखो ऐसा. तो the electric field is going to be small in this case. Okay, as soon as this electric field just builds up or becomes strong, तो जैसे ही suppose यहाँ पे electric field और ज्यादा strong हो गया, suppose और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो तब तक ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस स्पेस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये हमको समझना है. द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स और इन द स्पेस इन अ रीजन wherever there is a change in electric field. तो whenever electric field changes, it produces a magnetic field. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है. And that magnetic field this magnetic field produced here depends on the rate of change of electric field. How fast the electric field changes, that decides how much magnetic field is to be produced in the region, because every current, electric current, is the source of magnetic field. तो करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. चलो ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज अबाउट Van de Graaff generator, which is the today's topic. Actually, Van de Graaff generator is a very important device which is used to store the very high electrical charges, heavy electrical charges. ठीक है ना. तो ये जो Van de Graaff generator है, it is the device which is used to store the charges. Very large charge can be stored using this Van de Graaff generator, and basically the large charge can be built up. क्योंकि नहीं तो क्या होता है, देखो कि अगर सपोज कोई भी चार्ज, एक सपोज एक स्फीयर है, उसके ऊपर अगर सपोज हम कोई चार्ज रख देंगे तो उसकी वजह से समझो एक कुछ पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया इधर, ठीक है, सपोज सम पॉजिटिव चार्ज,
is kept on this sphere, then what will happen is if we try to push more positive charge on this sphere by using a कंडक्टर, सपोज ये कंडक्टर को सपोज हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया मान, ठीक है, यही बैटरी है और इस बैटरी के साथ इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम ये बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस स्फीयर, नो डाउट। बट अगर इस बैटरी का जो पोटेंशियल है तो वो अगर सपोज कुछ है 5 वोल्ट, मान लो इसका 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो जैसे ही इस स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल 5 वोल्ट बन जाता है तो ये जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, that there is no longer the flow of electrons or flow of the charges from this battery to the sphere, just because both of them are going to be at the same potential, because the flow of current requires potential difference. Whenever there is a potential difference, there will be a flow of charge from one point to another point. If there is no potential difference, there is no flow of charge. That means we will have to keep a potential of this battery to be more than the potential of the sphere here. But the tragedy here is that if we increase the potential of this battery up to 50 volt, suppose, then we can see that the charge will be able to flow from this battery into the sphere. But again the same situation will reach. Suppose the charge on this sphere goes on increasing, and at the same time potential will also go on increasing. तो पोटेंशियल भी यहाँ पे बढ़ता जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज बिल्ड अप ऑन दिस स्फीयर is so large and the potential is also going on increasing so large that this potential when this potential of the sphere itself becomes exactly equal to 50 volt, then we can see that again it will stop, the flow of current will stop here. तो अगर सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर यहाँ पे 50 वोल्ट हो गया स्फीयर का, तो ऐसे केस में फिर से करंट स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन नॉट पुट द चार्ज ऑन द स्फीयर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। एक लिमिट के ऊपर हम चार्ज नहीं रख सकते हैं स्फीयर के ऊपर, क्योंकि उसका क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ता है और पोटेंशियल बढ़ने की वजह से हमको उससे ज्यादा पोटेंशियल का बैटरी लगाना पड़ता है। तो अगर हम सपोज एक 10⁻⁴ वोल्ट का भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट करेंगे तो भी एक स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज रख पाएंगे that is very almost small, which is small than the required। मतलब जो हमको प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड होता है चार्ज स्टोर करना, तो उससे बहुत कम है ये चार्ज जो 10⁻⁴ वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बनता है। तो इसीलिए इस केस में क्या होता है ना कि डायरेक्टली किसी बैटरी के ऊपर या डायरेक्टली किसी स्फीयर के ऊपर हम बैटरी को कनेक्ट करके चार्ज नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको एक लिमिटेशंस है। But Van de Graaff generator is a simple device, which can be used to put the charge, very large charge on the sphere। तो देखेंगे ठीक से किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होता है। So basically सबसे पहले ये बात समझ में आई कि what is the use of Van de Graaff generator? To construct a device, or it is a device which can store large amount of charge and which can create large amount of potential also। तो वो बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। और ये हाई पोटेंशियल्स हमको जरूरी क्यों होते हैं, रिक्वायर्ड कहाँ पे होते हैं, तो वो जरूरी होते हैं हमको जो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं, तो उसके लिए हमको हेवीली हाईली मूविंग पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जैसे अल्फा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन गन के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो जो ताकि वो किसी न्यूक्लियस के ऊपर कोलाइड करे और उस न्यूक्लियस को ब्रेक कर दे। तो न्यूक्लियस का जो फिजन होना है, तो न्यूक्लियस का फिजन it is possible only due to the electrons which are moving very high with a very high speed, and they must have very high kinetic energy। and how can we give the kinetic energy to the electrons? And that is the because of, in order to give the heavy kinetic energy, high kinetic energy to the electrons, it requires a very high electric field, strong electric field is required, and this electric field can be produced only by the high potential difference only। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा नहीं होगा, और ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हमको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करे, ताकि हम जो इलेक्ट्रॉन्स है
या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है उनको उतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दे सके ताकि वो न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करके न्यूक्लियस को भी ब्रेक कर दे या पेनिट्रेट करे, न्यूक्लियस तक पहुंचे तो भी, कोलाइड करने की तो दूर बात है, लेकिन न्यूक्लियस के तरफ पहुंचने के लिए भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जरूरी होता है, याद रखो ठीक से। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रीच द न्यूक्लियस और पेनिट्रेट द न्यूक्लियस, एंड दैट्स व्हाई। बट जो हम नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखते हैं तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहता है, जो कि बहुत छोटा है। that is not sufficient to penetrate the nucleus. पेनिट्रेट किया वो तो न्यूक्लियस की तरफ जाने के लिए भी कैपेबल नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो वो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा भी नहीं। तो न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए और उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेंज में, और वो एनर्जी हम देने का काम करते हैं Van de Graaff जनरेटर के द्वारा। तो Van de Graaff जनरेटर is going to be a device which can be used to give the energy to the electrons, which can be used to carry out the nuclear fission, nuclear fusion, and even many nuclear reactions like that. So अभी हम देखेंगे Van de Graaff जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, देखो क्या किस तरह से वो बना हुआ होता है, क्या उसका डायग्राम है, तो वो देखेंगे ठीक से। ये देखो, दिस इज द टेंटेटिव डायग्राम ऑफ द Van de Graaff जनरेटर, देखो ठीक से। अभी आपको ये थोड़ा सा डायग्राम जो है कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, नो डाउट, जब फर्स्ट व्यू में जब देखते हो तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, नो डाउट, बट व्हेन वील ड्रॉ इट स्टेप बाय स्टेप देन वील फाइंड इट इजी to draw also and even understand also. See here, this is the Van de Graaff generator which is kept on the left side. Okay, now we'll draw this Van de Graaff generator manually. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Van de Graaff जनरेटर के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पहला पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है ये बेल्ट, और जो कनेक्टेड है दो सिलिंड्रिकल ड्राइवर्स के द्वारा। देखो ठीक से, ये सपोज अभी हम ड्रॉ करेंगे उसको, दिस इज द फर्स्ट टॉप पुली। ये जो है ये एक पुली है जो कि बिल्कुल टॉप पॉइंट पे रखा हुआ है, और वैसा ही एक पुली जो है वो नीचे यहाँ पे रखा हुआ होता है, उसके बिल्कुल सीधा नीचे, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर एक बेल्ट जाता है, देखो ऐसे, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट कनेक्टेड होता है। जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि जो फ्लोर मिल होता है ना, फ्लोर मिल, तो फ्लोर मिल के अंदर भी तुमने कई बार देखा होगा कि जो दो व्हील्स होते हैं सिलिंड्रिकल टाइप के, तो उनके जो उन दोनों के ऊपर से एक बेल्ट इस तरह से जाता है, देखो ऐसे। तो ये जो बेल्ट है ये पूरा इसके ऊपर से घूमता है ऐसे। So this is the construction and this is the center of this Van de Graaff generator. Okay, now we'll see ये जो belt है, this belt is driven by the motor which is kept at the bottom. ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये एक सिलेंडर है और जो एक मोटर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। मेरे को यहाँ पे इसके तरफ हम एक मोटर दिखा सकते हैं यहाँ पे। When this motor will rotate, because of that motor, this cylinder will also rotate like this. लेकिन चलो ठीक है, ये मोटर यहाँ पे दिखाना एक्सपेक्टेड नहीं है। We can understand that this lower cylinder, ये जो लोअर पुली है, ये एक्चुअली मोटर के द्वारा ड्राइव किया जाएगा। जैसे ही वो ड्राइव होगा तो इस तरह से जैसे घूमेगा तो ये बेल्ट
इस तरफ ऊपर स्लाइड करेगा और ये इस तरह से घूमेगा और इस तरह से नीचे स्लाइड करेगा और ऐसा गोल गोल घूमता ही रहेगा वो। सेम वैसे ही जैसे ही जो फ्लोर मिल होता है, तो फ्लोर मिल के अंदर तुमने देखा होगा जो दो सिलेंडर्स होते हैं और वो दो कनेक्टेड होते हैं एक बेल्ट के द्वारा, रबर का बेल्ट उनके ऊपर रैप किया हुआ होता है और उसमें से एक सिलेंडर जो है वो घूमता है और उसकी वजह से दूसरा सिलेंडर घूमता है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली मोटर के द्वारा ड्राइवन सिलेंडर कौन सा है, ये नीचे वाला सिलेंडर है, ये वाला। और ये घूमने की वजह से बेल्ट घूमता है और बेल्ट घूमने की वजह से ये दूसरा वाला सिलेंडर भी घूमता है जो ऊपर रखा हुआ है। ओके, अभी हम देखेंगे कि इसके साथ एक ब्रश कनेक्टेड होता है, मेटालिक ब्रश उसको हम बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक मेटालिक ब्रश कनेक्टेड है जिसके हेयर्स जो है वो मेटल के बने हुए होते हैं। देखो नॉर्मल हम जो देखते हैं ब्रश, उसके जो हेयर्स है वो नॉर्मली प्लास्टिक या किसी न किसी मटेरियल के बने हुए होते हैं, बट दिस इज द मेटालिक ब्रश। यू कैन सी इट्स मेड अप ऑफ मेटल्स, मेटालिक हेयर्स, या उसको हम मेटालिक कोम भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नॉर्मल जो कोम होते हैं तो उनका जो ये है जो हेयर्स बनते हैं, टीथ जो बनते हैं वो प्लास्टिक के या किसी न किसी ऐसे ही मटेरियल के बनते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ मेटालिक ब्रश। ओके, ठीक है, ये हो गया मेटालिक ब्रश। एंड दिस मेटालिक ब्रश इज कनेक्टेड एक्चुअली टू हाई टेंशन बैटरी हियर। तो एक बहुत बड़ा हाई टेंशन बैटरी यहाँ पे रखा हुआ होता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हुआ करता है। जैसे मैंने बताया था ना अभी कि 10,000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये है हाई टेंशन बैटरी। HT मतलब हाई टेंशन बैटरी। ओके, यहाँ पे ये जो है ये बहुत हाई हेवी पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10K। ठीक है, ओके, और ये दूसरा उसका जो टर्मिनल है इट इज जस्ट ग्राउंडेड, इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, मींस ये इस तरह से उसको कनेक्ट किया होता है ग्राउंड को। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे और एक ब्रश होता है। अच्छा, इसका वर्किंग भी मैं साथ साथ समझाते जाता हूँ। देखो ठीक से, ये जैसे ही ये मोटर के द्वारा ये नीचे वाला जो पुली है वो घूमने लगेगा, तो इसके घूमने की वजह से बेल्ट भी ऊपर तरफ घूमेगा और उसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ये बेल्ट के जो कोम्स है, ये जो इलेक्ट्रिक मेटालिक फोम के जो टीथ है, तो वो इस बेल्ट के साथ कांटेक्ट में है और जैसे ही वो बेल्ट ऊपर तरफ की जाएगा तो ये जो फोम फोम के जो टीथ है वो इसके साथ घिसेंगे और ऑब्वियसली ये जो 10⁻⁴ वोल्ट के साथ ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये चलो जो भी चार्ज के साथ वो कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो द चार्जेस विल बी डिपॉजिटेड ऑन द बेल्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ये बेल्ट के साथ ये चार्जेस ऊपर निकल जाएंगे, तो द चार्जेस विल बी डिपॉजिटेड ऑन द बेल्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। एंड चार्जेस जो है वो यहाँ पे इस इन टिप्स पॉइंट्स पे आएंगे क्यों, क्योंकि चार्जेस हैव अ टेंडेंसी टू कलेक्ट एट द कॉर्नर्स। रिमेंबर, अगर एक स्पीयर हम लेते हैं तो एक स्पीयर के ऊपर अगर सपोज हम चार्ज रखते हैं, मेटालिक स्पीयर, हाँ मेटालिक की बात चल रही है यहाँ पे, तो मेटालिक स्पीयर अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो अकॉर्डिंगली द चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरे स्पीयर के सरफेस के ऊपर, नो डाउट। लेकिन अगर ये स्पीयर जो है वो थोड़ा ओवल टाइप का है, अगर अगर ऐसा टाइप का है, तो उसमें होता ऐसा है कि देखा जाता है कि द चार्ज इज क्राउडेड एट द कॉर्नर्स लाइक दिस हियर। जहाँ पे कॉर्नर्स है तो वहां पे चार्ज क्राउड होता है, क्राउडेड होता है, मींस चार्ज हैव अ टेंडेंसी टू कलेक्ट एट द कॉर्नर्स एंड वाइडली सेपरेट एट द फ्लैटर रीजन्स। तो जहाँ पे फ्लैट रीजन होता है तो वहां पे चार्ज वाइडली सेपरेट हो जाता है, जबकि जहाँ पे कॉर्नर होता है तो वहां पे वो क्राउडेड होता है। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द चार्ज व्हिच यू कैन एग्जिबिट हियर। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जैसे कर्व पार्ट ज्यादा हो गया, मतलब शार्प कॉर्नर आ गया, तो वहाँ पे जो चार्जेस का जो डेंसिटी है वो बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। और जहाँ पे फ्लैट रीजन आ गया तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो गया। इसका ही कॉन्सिक्वेंस हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि देर इज नो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द कैविटी।
कैविटी जैसा जो रीजन होता है, समझो ये जो कैविटी का रीजन है, ऐसा ऐसा एक रीजन है सपोज। तो अभी इसके ऊपर अगर जब हम चार्ज रख देंगे तो चार्ज विल जस्ट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड हियर। तो यहाँ पे आउटर रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, नो डाउट, लेकिन अंदर वाले रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, एंड दैट इज बिकॉज इट इज अ कैविटी। तो यहाँ पे कैविटी है और कैविटी होने की वजह से वहां पे चार्ज नहीं जाता है। तो ये बात याद रखो ठीक से। एंड इफ सपोज वी टेक अ शेप which is like this, which is having a sharp corner here like this, so there will be a very high intensity of charges here at this region where there is a sharp corner. तो sharp corner जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे ही सबसे ज्यादा चार्ज का डेंसिटी रहेगा। surface charge density is increased at the sharp corners and it is very small, negligibly small at the flat regions like this. तो जहाँ पे फ्लैट रहेगा रीजन तो वहाँ पे चार्जेस का कलेक्ट होने का टेंडेंसी नहीं रहता है, बल्कि जहाँ पे कॉर्नर रहते तो वहाँ पे वो चार्जेस का कलेक्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। और इसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो कोम है तो इस कोम के टिप पॉइंट्स पे चार्जेस कलेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस टिप पॉइंट पे जो चार्जेस है वो सबसे ज्यादा कलेक्ट होंगे, और इस फ्रिक्शन की वजह से बेल्ट तो आगे ऊपर घूम रहा है और उस बेल्ट के साथ ये जो चार्जेस है, ये जो कोम है उसके टिप कनेक्टेड है ऐसे, और उसकी वजह से जैसे ही बेल्ट ऊपर जाएगा तो उसके साथ वो घिसेगा, और घिसने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से the positive charges will get deposited on the belt here. Okay, but at the same time there is another comb which is connected at this corner here. तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे और एक कॉम कनेक्ट होता है। ये देखो यहाँ पे ये दूसरा कॉम्ब है जो कि इसी बेल्ट के साथ कांटेक्ट में है, देखो एक तरह से। This is another comb which is just in contact with the same belt. Okay, and now we'll see ये जो है इसका जो इस कॉम्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो एक्चुअली कनेक्टेड होता है एक डोम शेप्ड रीजन के साथ। एक बहुत बड़ा डोम शेप्ड कंडक्टर होता है, देखो ठीक से। ये जो डोम शेप्ड कंडक्टर दिख रहा है ना ऊपर यहाँ पे, ये जो है दिस इज द डोम शेप्ड कंडक्टर इट्स कॉल्ड, एंड इट्स अ हेमिस्फेरिकल एक्चुअली। तो ये हम दिखा सकते हैं आराम से। हेलो, ओके सो ये है हमारा okay, this is the conducting
हेमिस्फीयर, ये जो यहाँ पे कंडक्टिंग हेमिस्फीयर होता है, जिसको सपोर्ट के लिए हम दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स फिट करते हैं यहाँ पे। This is the dome-shaped conductor. Yeah, which is supported on the two pillars, which are made up of like some insulating material. देखो ऐसे, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल के बने हुए पिलर्स होते हैं, जिनके ऊपर ये पूरा डोम शेप कंडक्टर खड़ा है। Okay, suppose this is the ground. तो इस तरह से जो है ये पूरा बना हुआ होता है। और अभी देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो कोम्ब है, तो उस कोम्ब का जो ये है दूसरा टर्मिनल है, वो दूसरा टर्मिनल एक्चुअली कनेक्ट हो रहा है इस वाले डोम शेप कंडक्टर से, ठीक है। जिसके कारण अब देखो जैसे ये चार्जेस जो है वो यहाँ पे बेल्ट के साथ ट्रेवल करेंगे और ऊपर जाएंगे, और जैसे इस कोम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, तो ये चार्जेस जो है वो इस कोम के अंदर जाके सीधा इस कंडक्टर के थ्रू इस पूरे डोम शेप कंडक्टर के ऊपर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखो ठीक से, so this will be the situation, you can see clearly that as soon as the charges get enter into the comb, the tips of the comb, they will just get distributed over the dome shaped conductor here। तो ये इस तरह से देखो, जैसे ही हम ये चालू करेंगे, ये मशीन चालू करेंगे, मशीन चालू करना मतलब क्या, ये जो नीचे वाला मोटर है ना, ये वाला जो है, इसके ये जिस मोटर के साथ कनेक्टेड है वो मोटर चालू करना, मतलब ये मशीन चालू करने जैसा है। जैसे ये मोटर चालू हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो ठीक से, इमीडिएटली ये जो नीचे वाला जो कंडक्टर है ये घूमने लगेगा, ये जो सिलेंडर है ये घूमने लगेगा, और ये जैसे घूमता है तो बेल्ट ऊपर तरफ स्लाइड करेगा, और इस बेल्ट के साथ जो है तो ये चार्जेस जो है वो ऊपर जाते रहेंगे, और ये ऊपर वाला जो बेल्ट है वो इन चार्जेस को कलेक्ट करेगा और ये चार्जेस को पहुंचा देगा इस डोम शेप कंडक्टर के ऊपर इस तरह से। And these charges will just get distributed on the outer surface of this dome shaped conductor here in this way, and hence you can see that this type of Van de Graaff generator will work so long as the machine is continuously running। जब तक ये मोटर जो है यहाँ पे, ये मोटर जब तक चालू है तब तक ये मशीन चलता रहेगा। ये जो इसके साथ कनेक्टेड जो मोटर है नहीं, ये जब तक चल रहा है तो तब तक ये घूमता रहेगा, और इसकी वजह से ये बेल्ट जो है वो भी घूमता रहेगा ऊपर नीचे की तरफ, और चार्जेस को ऊपर लेके जाता रहेगा, और ये चार्जेस जो ऊपर जाएंगे वो ऑब्वियसली इस दूसरे वाले बेल्ट के पास जाते रहेंगे, और उसकी वजह से ये जो चार्ज है वो चार्ज इसके ऊपर, ये बाहर वाला जो कंडक्टर है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। बिल्कुल। सो दिस प्रोसेस continuous unless and until the charge is developed here up to the potential difference of 10 raised to 7 volt। सोचो
10⁻⁷ वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमको मिलता है। सोचो यहाँ पे कितना था 10K, मतलब सिंपली 10⁻⁴ ही हो गया ना वो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमको जो सोर्स में यूज कर रहा है वो है 10⁻⁴ वोल्ट ओनली, बट फ्रॉम यूजिंग दैट we can get the potential difference of 10⁻⁷ volt, which is tremendously large than this input here. तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल हम देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा पोटेंशियल हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, जो कि 10⁻⁷ मतलब ऑलमोस्ट इट्स 10 बिलियन हो गया, 10 बिलियन वोल्ट्स के आसपास का हो गया। और इतना बड़ा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिक्वायर्ड क्यों होता है, why we require this type of large potential difference? तो उसके लिए हम देख सकते हैं आराम से कि there is a concept of nuclear reactions। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए हमको वेरी हाईली मूविंग पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं, और ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हम प्रोड्यूस करते हैं ये वैन डी ग्राफ जनरेटर यूज करके। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे, सॉरी राइट साइड में यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब होता है, ये सपोज टेस्ट ट्यूब है, देखो ठीक से, और इस टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर वाला जो एंड पॉइंट है तो वहां पे इस तरह का एक बंद होता है, ये टेस्ट ट्यूब है देखो, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, ये देखो ये इलेक्ट्रोड है अंदर, और इस इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन है तो वो एक्चुअली इस डोम शेप कंडक्टर को दिया हुआ होता है, देखो इसे, समझे ठीक से। तो इसका मतलब ये डोम शेप कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वही इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बन जाएगा, और इतने हेवी पोटेंशियल की वजह से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा हो जाएगा, देखो ठीक से। इतना हेवी या इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके हम चाहे जितना काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को। अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के सामने अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जैसे ही हम सपोज अल्फा पार्टिकल अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये सपोज एक अल्फा पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम ये पार्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल एक्सपीरियंस अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, which due to this force this charge particle will just get accelerated, and it will acquire a tremendous amount of velocity within a very very short time, and because of that velocity it will gain kinetic energy of about several mega electron volts, which is sufficient, as we have seen just before, that this type of kinetic energy is sufficient to break the nucleus। तो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए ये काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होता है, और उतना काइनेटिक एनर्जी देने का जो काम है वो इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस ही कर सकता है, और ये इतना बड़ा पोटेंशियल डेवलप करने का जो काम है वो वैन डी ग्राफ जनरेटर करता है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वेरी हेवी पोटेंशियल्स, ठीक है ना, एंड टू स्टोर द हेवी चार्ज। और इवन इसमें इससे भी आगे जाके ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है, तो वो वैन डी ग्राफ जनरेटर अगर हम सपोज किसी ऐसे ही ओपन एयर में अगर रखेंगे तो इट्स चार्ज विल जस्ट स्टार्ट डिस्चार्जिंग, और द एयर विल जस्ट स्टार्ट आयोनाइजिंग। तो ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है उसके आसपास जो एयर है उस एयर को ही अगर वो आयोनाइज करने में अगर उसका चार्ज वेस्ट करता रहेगा तो उसकी वजह से ये चार्ज जो हमने इसके ऊपर स्टोर करके रखा है वो धीरे धीरे लीकेज होना स्टार्ट होगा, लीकेज भी स्टार्ट होता है। और ये लीकेज को अवॉइड करने के लिए देखो क्या किया जाता है, तो इस लीकेज को अवॉइड करने के लिए ये पूरा जो वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज एक्चुअली कवर्ड इन अ नाइट्रोजन और अमोनिया कंटेनिंग कंटेनर और चैम्बर लाइक दिस। ये पूरा जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है इट इज इनक्लोज्ड इन अ चैम्बर which is actually made up of nitrogen sorry ammonia gas, which is somewhat electrically inert, or we can say which is more powerful to avoid the leakage। तो ये लीकेज होने के लिए वो अवॉइड करता है, और इसीलिए उसको यहाँ पे इस तरह से रखा जाता है, एक बहुत हेवी मीन्स ऐसे इनर्ट गैस के इस कंटेनर के अंदर उसको रखा जाता है, ताकि ये चार्ज जो इसके ऊपर फॉर्म होने वाला है वो चार्ज एयर के अंदर लीक ना हो, लीकेज ना होने पाए, और उसकी वजह से वो एयर को आयनाइज करने में वो लग न जाए या वेस्ट ना हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि अगर इस वैन डी ग्राफ जनरेटर से अगर कोई भी पर्सन अगर उसको टच करना तो छोड़ो, अगर उसके नजदीक से भी अगर गुजरता है
तो उस पर्सन का जो बॉडी है वो कंडक्टिंग होने के कारण, और ये जो वेंटिग्राफ जनरेटर का जो सरफेस है वो भी कंडक्टिंग बॉडी है, और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत हेवी है, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 10⁻7 वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसे इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से अगर कोई भी पर्सन इस वेंटिग्राफ जनरेटर के आसपास आता है, तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क्स। स्पार्किंग होता है, और उस स्पार्क्स की वजह से स्पार्क के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस वेंटिग्राफ जनरेटर से इस पर्सन के थ्रू अर्थ की तरफ चला जाता है, अर्थ की तरफ वो ट्रेवल करता है, एंड दिस कैन बी जस्ट वेरी हार्मफुल। इट कैन बी एज हार्मफुल एज लाइटनिंग स्टॉर्म्स। तो जितना लाइटनिंग आने की वजह से जितना भी ये होता है, नुकसान हो सकता है, उतना ही नुकसान इस वेंटिग्राफ जनरेटर से के वजह से भी हो सकता है। अगर हम अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सपोज हमने एक चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहना है, और अगर इस वेंटिग्राफ जनरेटर के अगर हम नजदीक को भी जाते हैं, थोड़ा भी नजदीक जाते हैं, तभी भी हमारे थ्रू जो करंट है वो वेंटिग्राफ जनरेटर के में से पास होगा, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में से बहुत हेवी करंट पास होगा, जो कि हमारा बॉडी डैमेज करने के लिए कैपेबल होगा। तो इसकी वजह से इट इज एडवाइज्ड नॉट टू मूव अराउंड और गो नियर, वेरी नियर टू द वेंटिग्राफ जनरेटर बिकॉज ऑफ दिस साइड इफेक्ट्स। एंड बट इट्स ओके। ये एक बात भी हम समझ सकते हैं आराम से कि वेंटिग्राफ जनरेटर भी अलग अलग पोटेंशियल के बनते हैं। बहुत ज्यादा वोल्ट के पोटेंशियल के भी वेंटिग्राफ जनरेटर बनते हैं, और इवन थोड़ा कम वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के भी वेंटिग्राफ जनरेटर बनते हैं। ठीक है ना, कोई कोई वेंटिग्राफ जनरेटर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 10,000 या 1 लाख वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के भी होते हैं। तो कोई कोई वेंटिक अभी चलो ये बात तो क्लियर है कि जब अगर हम सपोज अर्थ के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, अगर चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहना है, तो अगर सपोज इस तरह से हम कांटेक्ट में अर्थ के है, तो इट इज वेरी हार्मफुल टू गो नियर दिस वेंटिग्राफ जनरेटर। बट इफ सपोज वी वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, अगर हम अर्थ से डिस्कनेक्टेड है, और फिर अगर हम इस वेंटिग्राफ जनरेटर को अगर टच करेंगे, तो देर इज नो हार्म। तो उस केस में सिर्फ हमको एक चार्ज का फीलिंग आएगा, हमारे जो पूरे बॉडी के ऊपर चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, चार्ज फॉर्म हो जाएगा, बट विल नॉट गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक और विल नॉट गेट एनी डिजास्टर्स इफेक्ट, जस्ट बिकॉज करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी, क्योंकि करंट को जाने के लिए जगह ही नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तब तक उस केस में हमको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम वेंटिग्राफ जनरेटर को टच भी कर देंगे तभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उस केस में क्या है कि जो अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होने की वजह से। यस, यस, एनीबॉडी, एनी डाउट? ओके, सो वेंटिग्राफ जनरेटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में न होने की वजह से हम उसको टच करके भी हम खड़े रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So this is all about the Van de Graaff generator. Now we will see some images of this Van de Graaff generator, जो कि तुम भी ऑलरेडी गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। Okay, now see here, just see this image.
I hope you can see the image. Okay, image दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So you can see in the image that the girl is just touching the Van de Graaff generator by one hand, and because of that her whole body is charged. अभी obviously ये जो है अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, ये तो ये याद रखो ठीक से। तो अर्थ के कांटेक्ट में ना होने की वजह से ये हम उसको टच कर सकते हैं, नो डाउट। और अगर हम टच करेंगे तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो एक चार्ज हो जाता है। तो जितना चार्ज वैन de Graaff जनरेटर के ऊपर है, मतलब जितना पोटेंशियल वैन de Graaff जनरेटर का है, उसी पोटेंशियल पे हमारा बॉडी भी आ जाता है। तो उसकी वजह से जो चार्ज पॉजिटिव जो चार्जेस का रिपल्शन होने की वजह से हमारे जो हेयर्स है, तो हेयर्स के अंदर भी रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स है वो भी रिपल होते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण हम देख रहे हो किस तरह से उसका जो हेयर्स है वो इस तरह से चारों तरफ फैल जाते हैं। और इवन you can see all the different images of the same type, you can see even Mr. Bean का भी इमेज है वैन de Graaff जनरेटर को टच करते हुए। जब भी हम वैन de Graaff जनरेटर को टच करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे हेयर्स जो है वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं, और हेयर्स हल्के होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर भाग जाते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो रिमेंबर दिस करेक्टली। Okay, these are some images of Van de Graaff generator, you can see. Okay, और बाकी जो Van de Graaff generator का जो यूज है, क्या क्या यूजेस होते हैं वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑलरेडी। It is used to construct a very high potential difference, which is used to carry out the nuclear reactions. And इस nuclear reactions के अंदर कौन से reactions आते हैं? तो उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और इवन किसी सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है। जब कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है, उसका रेडियो एक्टिविटी डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और इवन कोई एक जो न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और तो ये किसी न्यूक्लियस को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करके दो अलग अलग न्यूक्लियाई में उसको बांट सकते हैं। तो all these are the concepts, these are the nuclear reactions which are carried out using this Van de Graaff generator. तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए हमको बहुत हेवीली, मतलब बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की जरूरत होती है। तो ये बहुत हाई स्पीड में मूव होने वाले जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से हमको मिलेंगे? जो छोटे पार्टिकल्स है उनको हम हाई स्पीड कहाँ से देंगे? अभी कोई अगर सपोज अगर कोई पत्थर है तो उस पत्थर को तो हम स्पीड दे सकते हैं, हाथ से उसको फेंक सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स, ये इतने छोटे पार्टिकल्स है कि जिनको हाथ में पकड़ भी नहीं सकते हैं, तो स्पीड देना तो दूर की बात है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, तो उनको स्पीड देने के लिए जो उनका जो चार्ज है वो यूज किया जाता है। तो उनका जो चार्ज है उसका सेम चार्ज का एक अगर इलेक्ट्रोड अगर बना के उसके सामने अगर रख दो, तो उसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वो एक डायरेक्शन में इस अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज से वो दूर भागता है, और उसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर सकता है, जिसका यूज वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट करने में होता है। तो this type of highly charged particles can be constructed using this Van de Graaff generator, which can be used to carry out the nuclear reactions and so on like that. लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मतलब एक लिमिटेशन है वैन de Graaff जनरेटर का, कि न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग दिस वैन de Graaff जनरेटर। एक ये प्रॉब्लम है कि न्यूट्रॉन जो है तो उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है। जो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिनके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो वो पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं यूजिंग वैन de Graaff जनरेटर। वो एक तरह से उसका लिमिटेशन माना जा सकता है। और दूसरा एक लिमिटेशन उसका ये है कि इट वर्क्स ऑन अ डीसी, डीसी के ऊपर वो काम करता है, एसी के ऊपर नहीं काम करता है। तो ये एक उसका प्रॉब्लम है कि इसको चलाने के लिए, जैसे हमने अभी भी देखा कि जो हाई टेंशन बैटरी जो दिखाया था 10⁻⁴ वोल्ट का,
तो वो 10⁻⁴ एक्चुअली डीसी था। और डीसी तुमको पता है कहाँ कैसे हमको मिलता है, जो तुमको पता होगा कि जो सेल होता है छोटा एक 1.5 वोल्ट का जो सेल होता है, ऐसे ही 4 सेल हम यूज करके और कंबाइन करके तो 1.5 1.5 1.5 प्लस 1.5 ऐसे 6 वोल्ट का बैटरी हम बनाते हैं। इवन कार वगैरह जो होते हैं तो कार के अंदर भी हम देखते हैं कि 80 वोल्ट के आसपास का बैटरी हुआ करता है, 80 वोल्ट। तो सोचो इतने छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है, डीसी पोटेंशियल डिफरेंसेस जो बनाने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता है, डीसी जनरेट करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। बट एसी बहुत इजीली पैदा हो जाता है। AC can be constructed easily and distributed also very effectively, but DC is very difficult to produce and also distribute करने के टाइम भी डीसी के अंदर पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से हम एसी यूज करते हैं। चारों तरफ जो हम देखते हैं कि एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट ही हम यूज करते हैं, बट डायरेक्ट करंट कभी यूज नहीं करते हैं मोस्टली। चलो छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर या छोटे छोटे मोबाइल वगैरह, उसके अंदर ही सब हम डीसी यूज करते हैं। बाकी जो हेवी एप्लीकेशंस होते हैं उनके अंदर एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज किया जाता है। बट डीसी जो वोल्टेज है वो 10⁻⁴ वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस करना इजी नहीं है, और ये बहुत डिफिकल्ट है। 10⁻⁴ वोल्ट का ही डीसी प्रोड्यूस करना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो उसकी वजह से ही हम वैन डी ग्राफ जनरेटर को यूज करना थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर डीसी यूज करना पड़ता है, डीसी यूज होता है। So all these are the concepts and limitations, working and uses and construction of Van de Graaff generator. Okay, so along with this, the chapter here ends with this concept. This is the last concept in this chapter, and in the next lecture, we'll see the numericals of this chapter. So इस chapter के numericals हम देखेंगे next time. Okay, so you are expected from your side. It is expected from your side. You learn all the formulae from this chapter. तो इस chapter के सब जो formulae है वो लर्न करके रखो। और जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड किया था तो उसमें से भी जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करके रखो, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डाउट्स ले सके, जो तुमको नहीं आए, वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर सके डिटेल में। ओके, चलो ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू सर। यस, बाय बाय।